زون اور انڈسٹریل اسٹیٹ، ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو زون ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اس پہ حکومت سبسڈی دیتی ہے، اس پہ فیسیلیٹیٹ دیتی ہے، انکم ٹیکس، ایکسائز جو دیگر برات وہاں پر دی جاتی ہیں اور بہت زیادہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سرکاری سرمایہ۔ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس پہ صرف انفراسٹرکچر بنا کے دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ روڈ بنا دی، پانی دے دیا، سڑکیں بنا دی، بجلی دے دیا، اس طرح۔ تو یہ بنیادی فرق ہے زون میں اور اسٹیٹ۔ علیم الرحمان کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیے اگر کیونکہ سوال یہی ہے تو میں یہیں تک رکھوں گا کہ تقریباً نمبر 822 یہ ذرا کچھ فریش کوشچن ہو رہا ہے۔ نمبر آف انڈسٹریل زونز پوچھے گئے ہیں، پلاٹ، یہ پلاٹ کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ فریش کوشچن ہے میرا۔ جی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے کہا کہ 222 پلاٹ لیڈیز کے لیے رکھے ہیں، اس میں کتنے الاٹ ہوئے، کتنے رہتے ہیں، اور جتنے الاٹ ہوئے وہاں پہ کسی لیڈیز نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے یا ابھی تک پلاٹ ویسے ہی پڑے ہیں؟ مختصراً جواب چاہتے ہیں۔ میں تو آنریبل ممبر صاحبہ کی نالج کے لیے تفصیل سے اس لیے بتاتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے، کبھی بھولے نہیں۔ میری بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب جیسے زاہد بھائی بھی کبھی ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میرے ہر سوال کے بعد آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے فشری کے علاوہ بھی میڈم اس کے علاوہ زاہد بگڑی جو ہے حافظ ہو گئے ہیں صنعت و تجارت کے۔ نہیں، یہ آپ دونوں ہی کی کوالٹیز ہیں کہ بہت اچھے جواب تفصیلاً۔ اچھا، اس کے اندر جو 222 پلاٹ فاتح کو الاٹ کیے گئے تھے وہ پرادادی کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اور ناظرہ کو ہم نے انوالو کیا تھا، لیکن ہم ایمانداری نہیں کریں گے ناظرہ کو انوالو، کیونکہ 20-25 لاکھ روپے کا خرچ کیا جائے، ہم خود اپنی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ 222 پلاٹ جو ہم نے دیے ہیں فاتح کو، اس پہ ایسا ہوا کہ الاٹمنٹ تو سب کو ہو گئی، لیکن اس میں بہت ساری خواتین نے تکلفاً پرادادی کے لیے پرچہ بھیج دیا اور ان کے نام نکل آئے، پھر انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا اور 10% جو جمع کرایا ہے، جو پہلی فیس جمع کرائی، اس کے بعد فیس بھی جمع نہیں کرائی اور تقریباً 28 برس ہو گئے۔ اس کے اوپر ہمیں نوٹسز دیے ہیں اور اس پہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ اگر وہاں پہ کام شروع نہیں ہوا، اگر کام آپ نے نہیں شروع کیا یا 50% آپ نے پیمنٹ نہیں دی ہے، تو اب ہمارے پاس لیگلی یہ اختیار موجود ہے جو قانونی نوٹس اخبارات میں دے کے ہم نے ساری کارروائی مکمل کی ہے کہ اب اگر کوئی خاتون آتی ہے اور چاہتی ہیں تو انہیں 1 گھنٹہ تو نہیں کہوں گا میں، کم از کم 2 دن میں ان کو ان کے نام پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ اگر وہ وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم اس کے اندر کینسل کرنے والے ہیں۔ ہم نے لیگل کارروائی مکمل کر رکھی ہے اور وہ بھی 6 مہینے پہلے مکمل کارروائی ہو چکی ہے، تو ہم ہمیں کوئی ہیج نہیں کہ ہم کینسل کر کے کسی دوسری خاتون کو دیں جو باقاعدہ اور وہاں پر کارخانہ لگا رکھے، پیسے جمع کرائیں۔ اور میں تو خواتین کے لیے یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ آئیے، آپ صرف یہ ثابت کریں کہ آپ لگا رہی ہیں انڈسٹری، آپ کو 10% دیں گی، باقی میں بہت 20 سال 15 سال 10 سال تک انسٹالمنٹ کر دوں گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ لگائیں وہاں پر۔ اگر کام کرنے والی خواتین آ رہی ہے تو وہ آ جائیں، ان کی انسٹالمنٹ اتنے لمبے کر دیں گے جتنا میرا اختیار ہے، میرے کلب کی آخری حق جو ہے وہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا کہ ان کی زیادہ دلچسپی اس معاملے میں کیوں ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے جس صلاحیت کو میرا مستقبل صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے، اس میں خواتین کس انڈسٹری کی طرف جا سکتی ہیں جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ آپ وہاں پر جو وہ گارمنٹ جو آپ دیگر صوبوں میں بھی بیچ سکتی ہیں، آپ ہوتے اتنے بڑے چھوٹے کارخانے لگا سکتی ہیں، یہ 500 گز کے اور 1000 گز کے پلاٹ ہیں، اس کو آپ ہائی رائز بلڈنگ میں کنورٹ کر دیں اور بناتی چلی جائیں، اس کی بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 2 فلور بنائیں، 4 فلور بنائیں۔ اس کے علاوہ چوڑیوں کا کاروبار ہے جو حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں، وہ وہاں پہ آپ لگا کے کام کر سکتی ہیں۔ خواتین کے تو سارے کام اور ہر کام
की कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी मशीनों पे आप 4-4, 5-5 काम कर सकते हैं। आपको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सोचती है कि हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सिंध स्पॉट के ऑफिस में आइए, MD आपको इंटरटेन करेंगे, आपको MD करेंगे, आपको चीफ इंजीनियर करेंगे, आपको सारे करके आप काम को शुरू कराइए वहाँ पर। और इसके लिए कोई करोड़ों रुपए की खर्च की बात नहीं है। आप 5 से 10 लाख के अंदर कोई छोटा सा काम आप शुरू करिए और आप देखिए कि उसके अंदर बरकत होती चली जाएगी। और मैं फातिमा को ये कहूँगा कि अगर वो एक रात में बिल गेट्स बनना चाहती है या फर्क, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको इब्तिदा में शुरू करना पड़ेगा छोटे से काम में, उसमें फिर आप नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आप काम करेंगी तो 5 साल में 10 साल में यही बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके पास होगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि शुरू कहाँ से किया जाए। हमारे कौम के इसमें समझ ये है कि हम परेशान नहीं होते कि हम शुरू कैसे करें। और एक दफा इनको बता दिया जाए कि यहाँ से शुरू करना है तो फिर ये सक्सेस हासिल करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आइए, सिंध स्पॉट का ऑफिस है रीगल चौक के पास, टेलीफोन करिए, उधर आगे बैठिए, आपको ब्लॉक में मिलेगा। मैंने बताया फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होगी और बड़ी किस्तें कर दूंगा मैं फातिमा के लिए। और आगे वो वहाँ पर काम शुरू करें और उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत देते जाएगा। हर काम जो आप काम करना चाहें, आप मसाले का काम जो है, मसाले जो है, मसालों की पिसाई का काम है, वो भी आप वहाँ पे कर सकती है। ये इतने बड़े बड़े मसाले की जो कंपनी है, आप अपनी शुरू कर दीजिए। इसके बारे में जो फातिमा को बहुत अच्छी नॉलेज होती है। शर्मिन और कॉमर्स है और लोन दिला मदद करना है ना लोन बोले जब हम प्लाट ले तो फिर लोन में भी आपकी मदद करें, पैसे भी दें। लोन अप्लाई करना है तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं? बैंकों से कनेक्ट करें, स्मॉल इंडस्ट्री से कनेक्ट करें, यानी प्लाट जो लिया जा रहा है, वो कह रही है प्लाट जो लिया जाएगा उसके लिए लोन। अच्छा, इंडस्ट्री लगाने। देखिए, जब आपके पास जमीन मौजूद है, जब वो लीज आपके पास, बैंक की कंडीशन होती है कि अगर जमीन लीज होगी तो वो आपको उसके अगेंस्ट लोन देंगे। तो मैंने ये कहा, हालांकि ये प्रोविजन नहीं था यहाँ पर, मैंने कहा कि नहीं, जो जेन्युइन है उनको आप, वरना हो गई है कि एक प्लाट लिया, लीज कराई, लोन लिया, गायब हो गए, भाग गए, इस तरह सैकड़ों केसेस है। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना होगा अगर कि आप जेन्युइन है, फैक्ट्री लगाने के लिए आए तो आपको फौरी तौर पर लीज करके दे देंगे। जैसे आप लीज करेंगे, आपको बैंक में आप जाए, आपको बैंक उस जमीन के हिसाब से आपको लोन दे देगा, आप अपना काम शुरू करें। उसके अंदर अगर मदद की जरूरत होगी, या ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मदद के वैसे ही करते हैं। 10,000 जगह पे हम टेलीफोन कर रहे होते हैं, कोई लगाने आता है, वैसे ही आपको मैं बताऊँ कि हम मिनिस्ट्री का काम तो बहुत कम कर रहे होते हैं। सरकारों के फैसिलिटेट करने के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट से बाहर है या फेडरल गवर्नमेंट के, मैं वहाँ पर भी बैठ के फोन कर रहा होता हूँ ताकि उनको आसानी के साथ काम का मौका मिले, ताकि रोजगार में इजाफा हो सके। देखिए, वहाँ पर ये नादर बाईपास जो है, मेवाड़, और इतनी अच्छी और खूबसूरत लोकेशन है कि जिनकी वहाँ फैक्ट्री होगी वो ड्रीम वर्ल्ड भी जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स भी हैं। उसके अलावा उसके साथ साइड एरिया भी वहाँ पर लगता है। 3 सड़कें, न्यू कराची से भी एक सड़क जाती है, सोराब रोड से भी जाती है, और बस से आप उस एरिया में पहुँच सकते हैं मेवाड़ के पास। अब जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है, तो मैंने इसके अंदर एक काम ये किया था कि जो फातिमा का सेक्शन है 222 का, वहाँ पे तो पूरी बाउंड्री वाल हमने अपने खर्चे से सिंध स्पॉट ने बना दी कि बाउंड्री वाल भी बना दे ताकि वो वहाँ पर अपने काफस का भी एहसास हो। जो दूसरा एरिया है वहाँ पर अभी अपने बाउंड्री वाल वगैरह नहीं, लेकिन जब वो वहाँ पर एक्टिविटी शुरू होगी तो ये तजवीज़ होगी कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये लगा लें और वहाँ पर बाउंड्री वाल भी बना दी जाए, ताकि इंडस्ट्रियल जोन होना भी बाउंड्री वाल के अंदर चाहिए। जैन गिरेवर से आप बचे, सिक्योरिटी से आप बचे, हर फैक्ट्री वाले को 10-10, 20-20 गार्ड रखने पड़ते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपको 3 एग्जिट पॉइंट के ऊपर, एंट्री पॉइंट के ऊपर 3-4 गार्ड के चौके बना दें तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा को क्या बना, वहाँ पर तो कारखाने नहीं लगाया किसी ने, ना वहाँ
You mentioned कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की बात हुई है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इंक्रोचमेंट रिमूव करने के इक़दाम किए हैं? मुतालिक नहीं है, ये सिर्फ इस फॉल का वाक़या नहीं है, ये साइड लिमिटेड का वाक़या है। सवाल है सिंध इस फॉल से, लेकिन मैं इसका जवाब खुद भी देना चाहूँगा क्योंकि डिपार्टमेंट भी एक है, लेकिन ये गैर मुताल्लिक़ का सवाल है। 300 एकड़ की ज़मीन जो फेज़ 2 में हमने हैदराबाद के लिए 300 एकड़ ज़मीन जो है जो हमने ली थी, और इसके लिए हमारे पास और ये बड़ी उम्मीदों के साथ ली गई थी कि वहाँ पर एक एक्सटेंशन की जाएगी, वहाँ पे तकरीबन 300 एकड़ के ऊपर 2006 और 2007 में हमने इसकी पूरी पेमेंट की गवर्नमेंट रेवेन्यू को, उन्होंने हमें क्लियर करके दी, पोजीशन हमें दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब इस पर काम शुरू करने के लिए हैदराबाद में इस पर काम शुरू करने के लिए टेंडर हुए, तब भी कोई नहीं पता, टेंडर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो गए, उनको मोबिलाइजेशन दे दिया। जब वो 300 एकड़ के ऊपर पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई और जख्मी हुए और फिर और उनको धमकियाँ दी गई। बड़ी मुश्किल से वो लोग जान बचा के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बचे। फिर उसकी FIR दर्ज कराई। फिर मैंने तमाम कॉर्नर को लिखा कि ये क्या प्रॉब्लम है कि ये ज़मीन पे ये कब्जा किस किस्म का है। ये बहुत अर्से तक चलता रहा। फिर बाद में मुझे पता चला कि उसके बाद कोई एक स्टेट था जो 1992 में ख़त्म हो गया और वो था माइंस लीजिंग का, कि वहाँ पर जो स्पिट फैक्ट्री है उसके लिए जो माइंस जमा होते हैं वो लेकर उस पर डाले जाते थे, लेकिन वो भी 1992 को एक्सपायर हो गई थी। अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेचना नहीं चाहिए था, जबकि ज़्यादा कीमत के ऊपर वो खरीदी गई। और अब सूरत हाल ये है कि वो 300 एकड़ ज़मीन इन्हीं सूरत हाल में गिरी हुई है। वहाँ पे प्लाट भी हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट मुतालबा कर रहे हैं। और पता चला कि उसके बाद जब ये FIR दर्ज हुई तो उसके बाद एक स्टे आ गया, वहाँ पर एक स्टे ने आकर सारी कार्रवाई को रोक दिया। मैं क्या बताऊँ कि स्टे का फायदा गरीब लोगों पे सिर्फ मेरे हाथ में 0.1 भी नहीं है। मोर देन 99.9% स्टे का फायदा लैंड ग्रैबर उठाते हैं, पैसे वाले लोग उठाते हैं। कोर्ट में गए, 500 रुपए का वकील किया, खर्च से एप्लीकेशन दी और सेकंड के अंदर वाले फैसले ले लिया स्टे। अब स्टे लेने के बाद अब आप बैठे रहिए, कौन का नुकसान हो, कौन का नुकसान हो, सूबे का नुकसान हो, किसी को कोई फिक्र नहीं। तो लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर और इस टाइप के जितने भी लोग घरों में कब्जे वाले, उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है और वो है स्टे लेना। और स्टे वन साइडेड हो जाता है, उसके अंदर दोनों पार्टियों को बुलाने की जरूरत नहीं होती। और कानून की वादे शिफ्ट के अंदर मौजूद है कि जब भी कोई फैसला होगा के अंदर, अदालत के अंदर, ये इस्लामी लॉ में भी है और लीगल लॉ में भी है कि जब कोई फैसला होगा, जब कोई